Hello guys, welcome to Coders Point. Today we have a new question, that is count collisions on a road. So let's see what exactly question is. As we can see on the screen, there are n cars on an infinitely long road. The cars are numbered from 0 to n minus 1 from left to right, and each car is present at a unique point. You are given a 0 index string directions of length n. Direction of I can be either L, R or S, denoting whether the ith car is moving towards the left, towards the right, or staying at its current point respectively. Each moving car has the same speed. The number of collisions can be calculated as follow. When two cars moving in opposite direction collide with each other, the number of cars increase by 2. When a moving car collides with a stationary car, the number of cars increase by 1. After the collision, the car involved can no longer move and will stay at the point where they collided. Other than that, cars cannot change their state or directions of motion. Return the total number of collisions that will happen on the road. Okay guys, so basically इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन्ड है, हमको फिगर आउट करना है टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रिंग विच वी विल गिवन इन द क्वेश्चन. तो उस स्ट्रिंग में हमारे पास मेजरली 3 तरह के इंडिकेटर्स हैं, R, L and S. R means the car is moving in the right side, the L means car is moving in the left side, and S stands for standing still, the car is not moving. So what we have to do, we have to calculate that how many cars are getting collide while moving and uska count हमको return करना है. So how we will do that, let's see. Okay, so let's take our first example, and our first example was, let me write here directions is equals to R, L, R, S, L, L. Okay, so this is the string, and as I told you, R stands for moving right, L stands for moving left, and S stands for being still or being stationary. So basically हमको करना ये है कि सबसे पहला ऑब्जर्वेशन हमारा ये होने वाला है कि जो अभी हमारी रोड है, लेट्स से दिस इज आवर रोड. इन दिस रोड हेयर वी हैव वन कार एंड हेयर वी हैव अनदर कार. अब जो कार हमारे पास लेफ्ट मोस्ट में है, दिस वन, इफ दैट कार इज मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट, तो ये कभी भी किसी दूसरी कार से कोलाइड नहीं करेगी. सेम इज फॉर राइट मोस्ट कार. अगर ये कार राइट साइड में मूव कर रही है, सो दैट कार विल ऑल्सो नेवर कोलाइड विद एनी कार. तो पहली ऑब्जर्वेशन तो हमारी ये होने वाली है कि हम सबसे पहले डायरेक्शन स्ट्रिंग में से लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट कार को चेक करेंगे. इफ लेफ्ट मोस्ट कार इज मूविंग लेफ्ट, वी विल ट्रिम दैट. इफ राइट मोस्ट कार इज मूविंग राइट, देन वी विल ट्रिम दैट ऑल्सो. तो ये दोनों ही कार्स कभी भी कोलाइड नहीं करेंगी. सो फर्स्ट वी हैव टू चेक दैट थिंग. अब ये हम चेक कैसे करेंगे? सो वी कैन सिंपली डू वन थिंग, वी कैन सिंपली पुट अ लॉजिक दैट इज L strip and R strip. Okay, so what we can do here is, we can for example इस डायरेक्शन स्ट्रिंग में से हमको लेफ्ट मोस्ट में चेक करना है, इफ वी हैव L इन द लेफ्ट मोस्ट, एंड राइट मोस्ट में चेक करना है, इफ वी हैव राइट इन द इफ वी हैव राइट मूविंग कार इन द राइट मोस्ट. सो वी कैन सिंपली डू वन थिंग, वी कैन राइट हियर डायरेक्शन डॉट L strip and here we will write L. So अगर हमारे पास राइट मोस्ट साइड लेफ्ट मोस्ट साइड में L होगा, so that will get removed. Same is for right side as well, that R strip, और हम R को remove कर देंगे. That is the first thing that we will do. After this, what next we have to check, जो भी remaining string बच रही है, in that remaining string we have to return total number of collisions in simply counting the L and R in the remaining string. So basically what we are gonna do, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस स्ट्रिंग का एग्जाम्पल लें, हमारे पास जो एग्जाम्पल के तौर पे है दैट इज़ R, L, R, S, L, L. तो इसमें सबसे पहले चेक क्या करेंगे कि हमारे पास लेफ्ट मोस्ट में और राइट मोस्ट में कोई लेफ्ट मूविंग और राइट मूविंग कार है क्या? नहीं है. तो व्हाट नेक्स्ट वी विल डू, वी विल सिंपली रिटर्न टोटल मूविंग कार्स. जो भी हमारे पास स्टेशनरी कार है, वी विल इग्नोर दैट कार, क्योंकि वो कार खुद से जाके कोलाइड नहीं करने वाली है. जो बाकी मूविंग कार्स हैं, हम उसका काउंट रिटर्न कर देंगे. सो हियर वी कैन सी दैट वी हैव R, L, R, L, L, और इसका काउंट होता है 5. सो आवर आंसर विल बी ऑल्सो 5. इसी तरीके से जब भी हमको चेक करना होगा, हम सबसे पहले यही चेक करेंगे कि हमारे पास क्या राइट मोस्ट साइड में कोई राइट मूविंग कार है और लेफ्ट मोस्ट साइड में कोई लेफ्ट मूविंग कार है. अगर हमको मिलती है कार,
देन वी विल सिंपली ट्रिम इट. रिमेनिंग स्ट्रिंग में से हमको सिर्फ मूविंग कार्स का काउंट रिटर्न कर देना, एंड दैट इज हाउ वी आर गोना सॉल्व द क्वेश्चन. सो लेट्स क्विकली राइट द सॉल्यूशन ऑन द लीड कोड. Okay, so as I said, what we are gonna do first, we are gonna first check that directions is equals to direction dot l strip, and यहाँ पे l को remove कर देंगे. Same we can do with the right also, so we can write here directions. हम इसको अच्छा एक साथ भी लिख सकते हैं. We can just put the point and after that हम लिख सकते हैं R strip, but I am writing it separately for a better understanding. So here I will write directions dot R strip, और इसमें से हम राइट मोस्ट को रिमूव कर देंगे. तो हमने सिंपली चेक कर लिया कि राइट मोस्ट में लेफ्ट मोस्ट में हमारे पास क्या कोई राइट मूविंग कार और लेफ्ट मूविंग कार है. इफ़ यस, वी विल रिमूव दैट पार्ट. अब उसके बाद जो भी हमारे पास स्ट्रिंग बच रही है, इन दैट स्ट्रिंग वी विल सिंपली काउंट टोटल कार्ड्स विच आर मूविंग. स्टेशनरी को हम इग्नोर कर देंगे. सो वी विल सिंपली रिटर्न हेयर, और वी कैन कैलकुलेट हेयर लाइक काउंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ कार्ड्स वेयर car state is not equals to stationary. Remaining we will write for C in directions. So हम क्या कर रहे हैं, रिमेनिंग जो भी हमारे पास स्ट्रिंग बची है उसमें से एक एक करेक्टर को फेच कर रहे हैं, एंड वी आर चेकिंग दैट करेक्टर कि क्या वो S है. अगर S है दैट मीन्स दैट कार इज इन स्टेशनरी स्टेट, और उसको हम इग्नोर कर देंगे. अगर वो L और R है देन वी विल कैलकुलेट द काउंट, और यू कैन से सम, एंड फाइनली वी आर गोना रिटर्न इट, and that's it. Now quickly run the solution. Yes, so case 1 and case 2 both are accepted. Now let's quickly submit this and see it is working or not. Yes guys, so we have successfully submitted our answer, and that is how we can solve this question. I hope you guys like the video. Now we will meet tomorrow with a new question. Thank you.